Hello everyone. Once again I welcome you all in my YouTube channel Damayanti Commerce Tutorial. I still expect from you all that everybody is safe, everybody is staying indoors and everybody is taking precautions not to have COVID, because we all have to bear this pandemic situation. We all have to be very strongly face all awkward situation, and we should have our humanity at the great height. We keep on helping, we have to keep on helping the others, the needful people. Okay, so with this thought, let us start today the next chapter. The third chapter of class 11th accountancy is accounting principles. But before going for the accounting principles, what we understand by the term principles? Anyone? Just think about it and write the meaning of principles. See, the term principles means what? A kind of guideline which provide us the directions that in which direction we are supposed to go. कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, किस ओर जाना है. आप ऐसे समझो कि आफ्टर क्लास 10th you were so puzzled what you have to study. You might have some person who has given you a proper guidance that you must go for the commerce, you must go for the humanities, and you may go for the science with bio or with mathematics, right? It means that you would have one counselor, one guidance provider, one person who understands your feeling and then gives the right suggestion to you. Now, this was the explanation for our personal life. But here I am going to explain about the term accounting principles. What I am going to? Accounting principles. Okay. So before starting the term accounting principles, we should know the term principles. So principles are what? These are the guidelines. Guidelines किसे कहते हैं? कहीं भी आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती हैं. किसी भी नए काम को आप शुरुआत करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं. जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि बी अवेयर ऑफ सच एंड सच एक्सप्लोजिव केमिकल्स. आपको बताया जाएगा कि ये केमिकल डालने पे फिर ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, राइट? सो बेसिकली प्रिंसिपल्स आर व्हाट? प्रिंसिपल्स आर अ काइंड ऑफ guidance, a guide who provides us the directions that in which direction we are supposed to go. Now, how to perform a task. अभी मैं आपको बोल दूं कि आप एक कैश बुक बना के दिखा दो. 90% children might not be knowing about the cash book, right? या मैंने आपको बोला prepare the financial statement of this firm. How will you prepare if I have not taught you, right? It means you need someone's guidance. आपको किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ये बताए. Guidance cannot be received, cannot be asked from a person only. This guidance you can get from the different kinds of books, different kind of YouTube channels, and in that you will find mine also, that is Damayanti Commerce Tutorials. So please keep on liking, keep on subscribing, and keep on blessing in the way of your lovely comments. Let us start the term accounting principles. Basically, accounting principles are what? They are the set of rules to bring uniformity. Now again, what is uniformity? आप लोग स्कूल जाते थे? Yes, स्कूल जाते थे, क्योंकि अभी तो nobody is going to school, ना तो आप जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं, right? So when we were going to school, we all were wearing the uniform. I also wear a uniform. Not the children wears those uniform. We have the separate uniform, right? So in this way, everybody is wearing same kind of dresses. Why uniform concept is being introduced in the school? The reason is so that everyone should feel equal. सभी को सब लोग एक जैसे एक बराबर दिखाई दे. पर्पस यही है यूनिफॉर्म का. सो अकाउंटेंसी में भी वी हैव सेट ऑफ रूल्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज सपोज इफ आई विल नॉट टीच यू हाउ टू मेक कैश बुक, राइट? या कुछ लोग अगर कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे तो दे माइट हैव फाउंड दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस कि स्कूल के टीचर अलग पढ़ाते हैं, ट्यूशन का टीचर अलग पढ़ाता है और फ्रेंड्स के समझाने का तरीका अलग होता है. तो यू विल फाइंड 3 डिफरेंट क्राइटेरिया.
मे बी आप अगर मेरा चैनल देख रहे हो, कहीं ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, तो आपको दोनों में बहुत डिफरेंसेस मिलते होंगे, राइट? तो दिस इज व्हाट यू माइट बी गेट कंफ्यूज कि विच आई शुड एक्सेप्ट, राइट? सो फॉर दैट वी हैव अ बुक. In the book, the process which is given, the same I am teaching to you all. So accounting principles are required to bring uniformity while preparation of accounting statements or business statements or those books of accounts which are required to be prepared. All the statements of a firm has to be understandable by all the parties, right? And how it will be understandable? क्योंकि हम तो हर डिपार्टमेंट में एक अलग व्यक्ति रख रखे हैं, राइट? तो एक ही काम, सारे काम को एक व्यक्ति तो कर नहीं रहा है. सो डिफरेंट वर्क्स आर देयर एंड डिफरेंट पीपल आर वर्किंग, एंड इफ एवरीबडी विल गो एज पर देयर ओन चॉइस, देन यू कैन अज्यूम व्हाट अ मेस इट विल बी. So to avoid such type of messy situation, we have a common set of rules to bring uniformity. Now let us understand what are the characteristics of accounting principles. The first is very clear, uniform set of rules, right? Uniform set of rules. ये uniform set of rules का concept कब आया? जब सारे बिजनेसमैन ने अपने अपने तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? अभी क्या हुआ कि कोई किसी से कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है कि किसकी प्रॉफिट ज़्यादा है, किसकी प्रॉफिट कम है. ये उनकी प्रॉब्लम थी, राइट? अभी एक दूसरे में आपस में लोग भिड़ जा रहे थे कि अरे तुमने ऐसे कैसे कर लिया, इसका तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैंने तो ऐसे लिखा है, तो तुम्हारा गलत है, नहीं मेरा तो सही है, तुम्हारा गलत है, राइट? इट हैपन्स, इवन हमारे आप में भी होता है. मैंने भी अपने बचपन में कर रखा है ना, आप लोग भी इस सिचुएशन को ज़रूर फेस करते होंगे, राइट? अब बात आती है कि फिर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, गैप, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये एक सिस्टम डेवलप किया गया कि सभी लोग, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन सबको एक ही तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तभी वो यूनिफॉर्मिटी आएगी, तभी ये पता चलेगा कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हम कितना प्रॉफिट या लॉस बेयर कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड इज मैन मेड. देखो, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इट मे चेंज बिजनेस टू बिजनेस. हर एक बिजनेस का अपना नेचर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत हाई लेवल का होता है, कोई लो लेवल का होता है, कोई सर्विस होता है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है. देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़, राइट? जैसे हम सब इंसान तो हैं, लेकिन सबका अपना अपना रंग है, अपना अपना सोच है, अपना अपना काम है. पढ़ने को तो 11th में कुछ लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं सब लोग. तो कॉमन क्या है कि एवरीबडी इज स्टडिंग, कॉमन क्या है कि एवरीबडी इज इन 11th स्टैंडर्ड, राइट? बट स्टिल देयर आर डाइवर्सिटीज़. Flexible, the third principal characteristics is flexible. Yes, साइंस का प्रिंसिपल स्टैटिक है, रिजिड है, वी कैनॉट चेंज. हमने भी बचपन में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, आप भी यही पढ़ रहे हो, हमारे मम्मी पापा ने भी वही पढ़ा था, हमारे दादाजी ने भी वही पढ़ा था, राइट? ये पुश्त दर पुश्त पुरखों से, पूर्वजों से मिला हुआ है कि ऐसा ही होता है, राइट? क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. और ऐसा नहीं कि इंडिया में है और दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होगा, नहीं नहीं, यूनिवर्सली का मतलब everywhere it is acceptable. But when we are talking about the accounting principles, right, this may get changed from business to business. अगर कोई छोटा बिजनेस है तो वो सारे प्रिंसिपल्स तो नहीं यूज़ करेगा, जो उस पर सूट करेगा वो उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा. मैन मेड मैंने इसलिए इसको बोला, क्यों? क्योंकि इट इज़ जनरली मेड एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन वाइल वर्किंग. अभी आप 12th में जब आप आएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे, उसमें बहुत सा पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया और फिर एक फाइनल प्रिंसिपल बनाया. नाउ द फोर्थ इज जनरली एक्सेप्टेड. सी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड तभी होगा जब ये 3 क्राइटेरिया ये फुलफिल करेंगे, ठीक है? When these 3 criteria will be fulfilled. So what are those the 3 criteria? The first is relevance.
If you remember, we have already discussed about the qualitative characteristics of accounting. Relevant, relevance, relevant से ही बना है relevance, यानी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट हैज़ टू बी यूजफुल. हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो यूजफुल होना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, उसका पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को, अपनी गवर्नमेंट को अपने बारे में ट्रुथ बताएं. वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग, राइट. एंड फीजिबिलिटी, फ़ायदा नुकसान क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है. देखो, जब भी आप अपने बिजनेस की सही सही चीज़ें काम करके बताओगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. लेकिन आप याद रखना, यू आर डूइंग अ बिजनेस. हमने अभी पढ़ेंगे हम आगे कि सारी बातें सबको बताना ज़रूरी नहीं होता. जैसे हम कहते हैं ना, घर की बातें सबको नहीं बताई जाती, उतनी बताई जाती है जितनी की ज़रूरत हो. एंड दैट्स ट्रू कि मैं जैसा क्लासरूम में पढ़ाती हूँ, सेम टू सेम आई कांट टीच हियर वर्चुअली. येस, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू बेस्ट, but still there might be some loopholes and you all are the best judges for me. So kindly keep on suggesting in my comment box and don't forget to like and subscribe my channel. And now here the most important aspect of this, the accounting principles are being divided into two parts. The first is concepts or assumptions and the second is conventions. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है. यू कैन सी अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस. पूरा अकाउंटिंग ही हमारा अजम्पशन बेस्ड है. अजम्पशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम मान कर चलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा. एंड आई मस्ट टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एक्सप्लेनेशन ऑफ concepts and conventions, very soon I will share my new video and then I will tell you in that the whole explanation and detailed explanation will be there. Okay. Why it is being said that accounting is totally based on assumption? देखो बेटा, हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब theoretical aspect है. When you will work as a chartered accountant, as a accountant in bank, as a clerk in bank, you will find this is not the practical aspect. देखो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो साइंस है इस पूरी चीज़ को पढ़ना, ठीक है, और आर्ट है कि इस पूरी चीज़ को पढ़ करके प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. ओके, सो दीज ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड वेरी सून द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस अकाउंटिंग concepts I will share, accounting conventions I will share. Okay, so thank you for watching. Thank you all.